ओके Now, so first question, that is crop production and management. Exercises. Good afternoon. How are you? So select the correct word from the following list. The same kind of plants grown and cultivated on large area of place is called crop. सर इसमें कुछ Second, the first step before growing crop of, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? That is preparation of soil. तीसरी चीज देखो कि damaged seeds would float on top, and for growing a crop sufficient sunlight, water from the water and nutrients from the soil, water and nutrients from soil is essential. Second, kharif crop, paddy and maize paddy and maize. और रबी क्रॉप क्या होता है? गेहूं की सबसे मुख्य क्रॉप रबी क्रॉप है, क्योंकि गेहूं की फसल है। सर वो तो बारिश में आती होती है ठंडक में, ठंड में गेहूं होता है, जितनी ठंडी होती है क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होगी वो दैट इज पैडी एंड मेज, धान की होती है, वो बारिश में होती है। खरीफ क्रॉप के लिए पानी चाहिए। तो फर्स्ट ई, सेकंड रबी क्रॉप दैट इज बी। थर्ड देखें केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके। फोर्थ ऑर्गेनिक मैन्योर, यस, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, इसको कहते हैं मैन्योर, खाद कहते हैं, और फर्टिलाइजर को उर्वरक कहते हैं। सो दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर होता है एनिमल एक्सक्रीटा, दैट इज सी, ओके। थर्ड, हमें खरीफ क्रॉप का एग्जांपल देना, दैट इज पैडी एंड मेज। और रबी क्रॉप का क्रॉप एंड ग्राम। फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे बोलो कोई बात, एक बार बोलिए पलक। Uppermost layer of the soil is moist and nutritious. For preparation of soil, we have to till or turn the soil. The process is called tilling. The soil is leveled and the crumbs are broken into small pieces. इतना ही ठीक है, बोलो बेटा जरा। ये तो हर बात बोलते हैं, मैं तो हाँ मैं भी हूँ सर, मैं देखो कितना कमज़ोर हूँ, गाल कितने पतले हो गए हैं। Preparation of soil is also known as tilling of soil. It is done by the plow, and it is done for take nutritious soil to the top of the soil. By this, roots get oxygen easily, and Soil becomes loose. हाँ। soil become loose, and the water holding capacity of soil will increase, and all the crumbs are get broken. ठीक है। Now next is sowing. Sowing बोलो आते हैं। When the soil is prepared, now we have to sow the seed. We have to sow high yielding variety. High yielding variety. High yielding variety seeds. So
we can take water and Leave the seeds into it. The seeds the seed which float on top of water is not good. और नॉट गुड, उनमें टोनोप्लास्ट की कमी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर तैर जाते हैं और फिर वो आगे चल के क्या होंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे. दैट इज नॉट जर्मिनेबल. वे कैसे होंगे? हाउएवर द सीड्स विच आर हेवियर एंड सिंक इन वाटर विल जर्मिनेट. ठीक है, रिपीट करो मैम. सोइंग, सर यील्ड क्या होता है? हाँ, सर यील्ड क्या होता है? यील्डिंग प्राप्त करना, हाई यील्डिंग वैरायटी जिनसे अच्छी फसल प्राप्त हो. हाँ, So when the seed is when the preparation of soil is done, we have to sow the seeds. कुछ तो और बोलो, निखिल बोलो. Sir, after loosening the soil, we have to sow the seed. Before sowing the seeds, we should know which seed is good and which seed is bad. The seed which float on water is bad quality or damaged seeds. हाँ, it will not germinate. And we should always sow high yielding variety seed. हमें क्या करना चाहिए? High yielding variety seed को ही करना चाहिए. Now weeding, आयुषी. So weeding is the process in which we separate unwanted plants from the crop, and we use weedicides like compost. Weeds करते क्या हैं? They take the nutrition of the plant, in which plants the crops get less nutrition when they get they get weak, and when we eat them we get less nutrition. They compete for nutrition, है ना? They compete for space and light nutrition. सही है. मतलब स्पेस के लिए, लाइट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए विद अवर क्रॉप. सो इट इज नीडेड टू बी, उनको क्या करना है? वीडेड आउट, बाहर फेंकना है. फॉर दैट वी यूज वीडीसाइड. इसका नाम क्या है? 2,4-D. 2,4-D. सर इसका मतलब क्या है? नाउ थ्रेशिंग बोलो दिव्या. सर 2,4-D का मतलब क्या है? एक केमिकल का नाम है, जैसे अलग अलग केमिकल्स बाजार में आते हैं ना, तो केमिकल्स का नाम ऐसा ही होता है. 2,4-डाइफिनाइल यूरीथेन. तो उसका डी का तो डी वीडीसाइड वर्ड का एक और है. एग्जांपल, सर वीडीसाइड का और कौन सा एग्जांपल? वीडीसाइड्स का मतलब जमीन में से खरपतवार को, या तो और एग्जांपल कौन सा है? सर एक तो ये 2,4-D. 2,4-D है. तो और बाजार में बहुत सारे वीडीसाइड्स आते हैं मतलब कि जिनको आप क्या कर सकते हो, ऐसे वीडीसाइड्स होते हैं जो वीड को उखाड़ फेंकते हैं. जैसे ये देखो, सर एक सब जैसे नाम याद आ रहा है सर, वीडी स्पेस जैसा. वो क्या करते हैं, जो खरपतवार होते हैं ना, झाड़ झंकार उगाते हैं, हवा में बहुत सारे सीड्स उगा करते हैं. बट ये देखिए, ये नाउ तो अब देखिए, आपको वीडीसाइड की सीरीज मिल जाएगी. कुछ मेरे घर पर भी रखते हैं, ऊपर होती है. तो वीडीसाइड तो वीडीसाइड फॉर प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो आप ये देख लो, ये सारे अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग कंपनी बनाती हैं. ठीक है, तो ये है. वैसे नीम भी एक अच्छा वीडीसाइड है. फिर अलग अलग है, वीडीसाइड एक्स भी आता है, तो वीडीसाइड एक्स है. और ऐसे नाम है, लेकिन आप WD-40 रखें. ठीक है ना? धनुका, हाँ 2,4-D धनुका खूब चलता है. धनुका का बहुत अच्छा है. ठीक है, हर्बिसाइड भी होता है जो हर्ब से बना होता है. हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस तरीके के नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडीसाइड्स आर देयर इन अ मेजर. दिव्या बोल रही थी, बोलो. हाँ बोलो, आप ये बोलेंगे.
कुछ है बोलो। Sir, benign. हाँ, इसमें ये तो सिर्फ क्वेश्चन है। Rushing आ जाएगा, ठीक है, ओके। Now, explain how fertilizers are different from manure, Jasmita. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में कुछ अंतर है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं और मैन्योर जो है गोबर से, वेस्ट वेजिटेबल, हाँ, फील्ड से बनते हैं। फर्टिलाइजर्स कॉस्टली बोलो सारी बातें, रुक जाओ अभी, बोलो आयशी। Fertilizers are man-made inorganic substance, whereas manures are prepared in fields with natural substance. Manure contains a lot of humus, whereas a fertilizer doesn't contain a lot of humus. बात ना करो। Fertilizer contains lots of nutrients, whereas a manure doesn't contains a lot of humus. फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तुम्हें कुछ अगर फास्फोरस का चाहिए तो बाजार में फास्फोरस का मिल जाएगा। अगर तुम्हें जिस चीज़ का चाहिए, जिंक का चाहिए, मिर्च के लिए जिंक चाहिए होती है तो फिर जिंक, पालक के लिए मैग्नीशियम, वही मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, जबकि मैन्योर में कुछ भी है, सब चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर्स आर ठीक है, कॉस्ट वाली, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इट टेक्स बल्क ऑफ वॉल्यूम जो होता है मैन्योर, और जबकि फर्टिलाइजर्स कम इन टाइनी स्मॉल पैकेज फर्टिलाइजर लार्ज अमाउंट में यूज करेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा। इसके लिए जबकि सर लिमिट फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होते हैं। है ना, हाँ, ठीक है। नाउ अब आगे देखो, what is irrigation? Arav, describe the method of irrigation which conserve water. Irrigation is a process in which water is given in a period of time to the crops, and so the method is sprinkler system and drip system. That is given in a regular Regular period, period of time. interval of time, ठीक है कि नहीं? तो उन दोनों के बारे में भी कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया? हाँ, तो दोनों में लिखा हुआ है। Yes sir, मतलब सिस्टम सर, ड्रॉपर फ्लक्स सर, कटा स्प्रिंकलर सिस्टम सर। स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बोलो। Sludge sprinkler system has a rotating nozzle on top of it, which is attached on a perpendicular pipe. It rotates when the स्प्रिंकलर सिस्टम आप लोगों ने देखा है? Yes, इसमें पानी घूमता रहता है, नोजल KV2 में है, घास से पड़ा रहता है, हाँ? वन में भी है, वन में है, वन में तो है। ऐसे कई जगह पड़ा रहता है, खेतों में ऐसे पानी नहीं घुमाता रहता, ब्लेड रहती पानी से, तो अंदर के पार्कों में भी है। पहले एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा ड्रिप सिस्टम। मैम, ड्रिप सिस्टम क्या है? Sir, in this system, the water fall by drop, water fall from a drop near the roots. हाँ, it saves water. So dripping system is used in that area where water scarcity is there. कौन सा वाटर से ज़्यादा कंजर्व करते हैं? हाँ? मतलब प्लांट उगाना है। वाटर वेस्टेज कम होता है, काम दोनों एक ही करते हैं। उनको रूट को ही देना होता है। अब जरा देखिए कि if wheat is sown in Kharif season, what would happen? Jasmita, अगर खरीफ सीजन में तो हम लोग जानते हैं कि पैडी है, वो उगाने जो धान है, लेकिन अगर हमने wheat उगा दिया तो क्या होगा? आप बोलो सोचिए। रिया, कुछ रीजन बताओ। हाँ, ऐसे सिंपली नहीं बोल सकते, बोलो देवव्रत। If we grow wheat in Kharif season, then it is destroyed because wheat does not need much water to grow, and Wheat does not need much water and it also needs, that is cold atmospheric condition, cold climatic not get condition. the But atmospheric condition. the climatic condition and the proper irrigation will not be given to it, ठीक है कि नहीं? Excess water will spoil it and the excess temperature will spoil it. क्यों? क्योंकि cold आपको condition मिलेगी। cold temperature मत लिखना, cold temperature कुछ नहीं होता, cold climatic condition। Atmospheric condition में हाँ, बोल सकते हैं। हाँ?
हाँ, तो उसको जितनी ठंडी मिलेगी ना गेहूं के अंदर उतना ज्यादा हीरा मिलेगा। वो जो वाइट पोर्शन उसे हीरा कहते हैं, तो मोटे गेहूं में ज्यादा हीरा होता है। So explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop in a field. रयान, अगर मान लो कंटिन्यूअस प्लांटेशन करोगे तो इससे आपकी सॉइल में क्या फर्क पड़ेगा? लगातार फसलें उगा रहे हो और तुम जमीन को आराम नहीं दे रहे हो, एक के बाद एक फसल उगाते जा Not रहे हो। giving proper time to soil to renew. So soil cannot replenish its nutrients और फिर अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी? Infertile. It will become infertile. ठीक है ना? And soil will be unfit to produce any more crops. सारी बातें मैं फिर से बताओ। So when we grow continuously, when we do continuously plantation on the field without giving the field rest, so the field losses nutrients and the soil fertility is over. The soil become infertile. And it will not get time to replenish its nutrients. If it is sown in Kharif season, what will happen, Anmol? हाँ, यदि खरीफ के मौसम में हमने गेहूं बो दिया तो उस पर उसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा? वो अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा, उसका तो सीजन तो वो उसको नहीं मिलेगा, तो सर उसको एटमॉस्फेयर में जो उसको चाहिए वो नहीं क्या चाहिए उसको? तो जैसे फिर उसको फिर कम पानी चाहिए और क्या चाहिए? और फिर मॉइस्चराइजिंग चाहिए, ठंडक चाहिए। ठीक है, अब बताओ कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? सर किसमें? खाद और उर्वरक को हिंदी में फर्टिलाइजर एंड मैग्नीशियम। बोलो। सर फर्टिलाइजर तो सर फिर तुम इंग्लिश में जवाब दे रहे हो। अच्छा कोई बात। खाद होती है सर, वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद को नहीं बनाया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब देखिए, what are weeds? How can we control them? बोलो मानसी। The unwanted plants which grow along with the crop, this crop is weeds. We can control them by looking before. We decide, ठीक है, how can this can be done? अब देखो दिव्या, ये मुझे बताओ 10th क्वेश्चन में कि सबसे पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे? फिर सोइंग, फिर हाँ अच्छा, पहले पानी डाला जाएगा फिर मैन्योर डाली जाएगी, ऐसा ही? पहले मैन्योरिंग करो, बाद में इरिगेशन। खाद डाल दो और बाद में इरिगेशन करो, ठीक है? ओके, नाउ अगले चैप्टर पे आओ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। पहला क्वेश्चन देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ब्लू बीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। नाउ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद हेल्प ऑफ cholera is caused by bacteria. Second, yeast is used in production of alcohol. ये सही है। The following is antibiotic. हाँ, ये बाजार में मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। So स्ट्रेप्टोमाइसिन कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ।
Okay, the most common carrier of communicable the bread or idli dough rises because of the process of conversion of sugar into alcohol. ठीक है, शुगर इनटू अल्कोहल, इसको किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया से कॉलरा हो जाएगा, तो फर्स्ट का ई. सेकंड हाँ, राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास, ये सारी क्या है? ये नाइट्रोजन को ब्लू ग्रीन एल्बे जमीन में ये सरका करते हैं. साइनोबैक्टीरिया भी उन्हीं में आता है. तो राइजोबियम है, दैट इज फिक्सिंग नाइट्रोजन. सेकंड का ए. लैक्टोबैसिलस, ठीक है. फोर्थ मेकिंग ब्रेड, ये भी सही है, तो ब्रेड बनाने के काम में आएगा. फिफ्थ प्रोटोजोआ कॉजिंग मलेरिया, सो डी. एंड सिक्स्थ वायरस एड्स के लिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आई? देवव्रत, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? अरे रुक जाओ. Microorganisms cannot seen with naked eye as they are very tiny in size. They can be seen with the help of microscopes. What are the major groups of microorganisms, Shaurya? सर पैराशेरा, पैरामीशियम, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, आप बोलो बेटा. ध्यान. अभी आप छुट्टी से आए ना, एक महीने पहले ही, तो अभी इतनी जल्दी आपको नहीं आएगा, तो थोड़ा सा 1-2 महीने हो जाएं, फिर प्रॉपर्ली आपको हो जाए. नाउ नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. बोलो निखिल. हाँ आयुषी. Blue green algae fix nitrogen, fix atmospheric nitrogen in the soil. सर न्यूट्रिशन मींस ठीक ही है. हाँ हाँ ठीक है. और जो साइनोबैक्टीरिया वही प्लूरिन है, अगर आप वो देखते तो चल जाएगा. ठीक है. राइजोबियम एजोबैक्टर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है? प्लूरिन. अब आगे देखो, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. जस्मिता. सर हो गया. राइजोबियम. Write 10 lines on usefulness of microorganism in our agriculture. Lactobacillus bacteria helps in setting of curd. Yeast is fermented to make alcohol. Yeast is fermented to make batter or dosa or baking. Bacteria is used to make cheese. Some bacteria like Lactosomonas or Rhizobium help in fixing nitrogen in the soil. जस्मिता बोलो सर. Microorganisms are useful for making medicines, alcohol and drugs. बोलो कौन सी आप क्या बोलोगे? सृष्टि बोलो. Sir, they are used for making bread and cake. Bread and cake, they are used for making medicines. They are used for setting curd. ऐसे दे में ठीक है, रहेगा, अदरवाइज स्पेसिफाई भी कर सकती थी ईस्ट जिसके लिए है और प्रोटोजोआ उसके लिए ऐसा भी करा जा सकता Lactobacillus हमारे बॉडी में WBC है. हाँ यूज करता है. प्रोड्यूस करते हैं और न्यूट्रिश Lactobacillus acidosis nervous system और इम्यून सिस्टम. बोलो 10 पॉइंट्स सीरियसली. Sir, Lactobacillus bacteria converts curd into milk into curd and cheese. Bacteria are involved in making of cheese. Azobacter acetate convert sugar into alcohol.
शुगर को अल्कोहल को में शुगर से अल्कोहल तो ईस्ट बनाएगा। एसिटिक एसिड है तो एसिटोबैक्टर क्या करता है? ठीक है, वो एसिटिक एसिड जो वो उससे एसिटिक एसिड जो वो सेक्रीट करता है वो एसिटिक एसिड है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर। और बोलो। Bacteria make humus by decomposed animals, dead animals. By penicillin bacteria, medicine is made for malaria. And antibiotics are made from antibody bacteria. Example tetracyclines. ठीक है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। इसको लिख के दिखाइए। जो एक्सरसाइज में उससे दो ही आएगा। क्या इन बिटवीन जो आएंगे 80% एक्सरसाइज रहेगी। चलो, जो बीच का है वो बाद में कराएंगे। 80% आपकी एक्सरसाइज कॉज कॉलरा, डायसेंट्री और AIDS. They causes plant diseases. जैसे प्लांट में क्या होता है? रस्ट ऑफ वीट और they spoil food, our food and So food they grains. rot our fruits. हाँ, और So they cause disease in humans. हाँ, that is फंगल डिसीज भी कर सकते हैं। If they enter in our body. Dental diseases caused by bacteria. हाँ, और बोलो। Food poisoning. फूड पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। So they cause food. Influenza like diarrhea, TB, polio. पोलियो भी हो सकता है। 8, 9 क्वेश्चन करके दिखाइए। COVID. एट वाले में कितने पॉइंट आते हैं? मुझे तो पैराग्राफ लगता है 6। कितनी का पैराग्राफ के रूप में भी नहीं, 2 है। 8 और 9 कर दीजिए दो। पूरे पॉइंट कवर होने चाहिए। चलो, नाउ